We welcome you all to this beautiful series of Pahadiya Bhagya, which is about stories of Himalayas. And not just Himalayas, but the range of hills that cover the northern part of India. And also, we'll be covering Nepal, Burma, Myanmar in our coming series. Yes? So, to begin with, we have Sameer Jolly ji with us. He's a very senior art of living teacher, has been associated with art of living for more than 20 years now, and has been into many seva projects of art of living. For example, the tsunami rehabilitation program. Then he has been into the project of bringing the Maoists and the Naxalites into the mainstream. Yes. So, apart from that, I would just like to give you a little bit background of him, personal background. He is a graduate from Delhi University in Political Science Honors, has taken a master's degree from Symbiosis, and has worked for 5-6 big giants in corporate world like Wipro, GE, Tata's he has worked with, and then he became an art of living teacher and came into art of living and has been teaching across few nations. For example, like he's been teaching in Africa, then few countries in Europe, India of course, and Myanmar, Nepal. So to begin with, शुरू करने के लिए we welcome Sameer Jolly ji in this program, and I would like to start with कि ये concept कहाँ से आया समीर जी? पहाड़िया भाग्य. You know, the name itself is so fascinating and interesting, of course. So how did it come? We would like to know that. पहाड़िया भाग्य पहले तो मेरा जन्म ही पहाड़ में हुआ था. I was born in Himachal in a town called Gold Camp. ये धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट में है इंसिडेंटली. तो since my father was in the army, so he happened to be posted there जब मेरा जन्म हुआ. और बचपन तो पहाड़ में ही बीता, यहाँ तक कि till about 5 or 6 first 5-6 years of my life I had not seen the plains. मुझे यही नहीं पता था कि गर्म हवा क्या होती है. तो कभी हमारे पेरेंट्स हमको जम्मू सिटी लेके जाते थे, उधमपुर में फादर पोस्टेड थे बाद में, तो पता लगता था अच्छा ये गर्म हवा है. देयर इज समथिंग कॉल्ड गर्म हवा का भी एहसास हुआ. तो इन क्लास 1 आई केम टू दिल्ली. तो तब तक जीवन पहाड़ों में बीता था टिल द टाइम आई केम टू क्लास 1. और सबसे दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. और उसके बाद समवेयर माय डेस्टिनी, मैंने इसलिए भाग्य लिखा. प्रोग्राम का हम लोग ने नाम रखा पहाड़िया भाग्य. मेरा जो भाग्य है वो कहीं ना कहीं मुझे पहाड़ में लेता गया, पार जाता गया. और यहाँ तक कि मेरा शादी भी पहाड़ में हुई. हमारी अर्धांगिनी जो है, माय वाइफ फ्रॉम नेपाल इंसिडेंटली. सो and this is I think really a coincidence. I mean, I could have very much married somebody from India itself. तो और उससे भी जरूरी बात क्या है कि मेरी कर्म भूमि पहाड़ रही. 2003 में मैं अगर अभी पीछे जाकर देखूं तो कहीं ऐसा लगता है कि why I asked Gurudev or rather requested him that मुझे फुल टाइम ट्रैवल करना है और मुझे आप कश्मीर भेज दीजिए, नहीं तो नॉर्थ ईस्ट भेज दीजिए. आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो सोचता हूँ अरे कश्मीर भी हिमालय का हिस्सा है और नॉर्थ ईस्ट तो हिमालय का हिस्सा है ही. सो कहीं ना कहीं जो मेरा भाग्य है, मेरा इतनी मुझे पहाड़ों पे ले जाती रही. और धीरे धीरे मेरे जीवन में ये भी अनुभव में आया है कि even from a distance I can smell the mountains. I mean, it's a very strange thing to say, but even if you can't see the mountains, if I can actually smell the mountains. Yeah. तो मुझे पता होता है they are somewhere close. Himalayas are very close.
this is अभी रिसेंटली फॉर एग्जांपल या this is saying a something. very fascinating line. You can smell the mountains. It is so beautiful. It हाँ literally gives goosebumps at times. Smelling the mountains. Okay. हाँ मैं ना एक इन माय कॉलेज डेज वी हैड गॉन ऑन अ पिकनिक हॉलिडे, ऐसे स्पॉन्टेनियस हॉलिडे पे गए थे मी एंड माय फ्रेंड्स। तो वी वर इन अ स्मॉल विलेज समवेयर नियर जलंधर। तो क्या हुआ, वहां हम सुबह ट्यूबवेल में वो खेतों में नहाने जा रहे थे एंड मेरे को ऐसा ही लगा कि माउंटेन्स आर क्लोज बाय, आई कुड जस्ट स्मेल द माउंटेन्स। सो मैंने बोला अब तो दैट सॉर्ट ऑफ वंडरलस्ट कम्स इनटू मी कि भाई अब तो पहाड़ों में जाना ही जाना है। And very soon we were in Pathankot and further on. So this it brings me back. मैं बहुत बार ऐसा भी सोचा है, प्लान भी किया है, हुआ भी है कि मैं सोचता हूँ चलो अभी नॉर्थ ईस्ट बहुत हो गया यार, अब मैं नॉर्थ ईस्ट में नहीं रहूंगा, बट मुझे सृष्टि यहाँ से नहीं जाने देती है। एंड आई एम नॉट स्टेड हियर ऑल द टाइम, बट आई कीप कमिंग बैक टू द हिमालयाज टाइम एंड अगेन। अलग अलग कारणों से कुछ ना कुछ ऐसे संजोग बनते हैं, कुछ तो कारण बन जाते हैं जिससे मुझे हिमालय में आना ही पड़ता है। तो इसलिए तो हुआ ऐसा था कि मैं सोलर लाइट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था नेपाल के अंदर। मुझे गुरुदेव ने नेपाल भेजा हुआ था उन दिनों। किसी गांव में जा रहे थे तो रास्ते में मैंने देखा एक गाड़ी के पिकअप ट्रक होती है ना महिंद्रा की, उसके पीछे लिखा हुआ था पहाड़िया भाग्य। ओ माय गॉड, हाँ उसके पीछे लिखा हुआ था पहाड़िया भाग्य। सो तो मेरे को ऐसा मन में लगा रही ये तो मेरे जीवन की कहानी है, दिस इज पहाड़िया भाग्य। और फिर जब हम लोग का ये डिस्कशन चलने लगा कि ऐसा कुछ कार्यक्रम शुरू करते हैं, so I said पहाड़िया भाग्य should be the name of the program. Yeah, that's how it all came about. Yeah. So, since you've stayed there since childhood and as you said, आपकी कर्म भूमि भी वही रही है, so आपने वहां के ट्रेडिशन को बहुत पास से देखा होगा, वहां के ट्रेडिशन as in how the people are, how they live. So we would really like to know about this. कैसा वहां के लोग रहते हैं and how their nature is, how much they are connected with the nature maybe. देखिए, we are all connected with nature, but people who are staying closer to nature, they are more natural, they are more, मतलब True. उनका स्वभाव जो होता है, उनका जो नेचर होता है वो सहज स्वभाव से रहते हैं। मोस्टली True. स्टे क्लोजर टू ब्रिक्स, पत्थरों के बीच रहते हैं तो कहीं हमारी भावना भी पत्थर होने लगती है, ये मेरा मानना है। और जब हम फूल पत्तों के बीच में नेचर के साथ रहते हैं तो हमारे अंदर भी वो इनोसेंस आने लगती है, जो एक नेचर में एक इनोसेंस है, इनहेरेंट इनोसेंस है। So of course, everybody cannot stay in the greens all the time. So, but as much as we can. तो इसलिए पाया गया, देखा गया कि people who are from such areas, they are more innocent, more happier, more smiling. They don't need a reason to smile. So they by nature they are like that. और ऑफ कोर्स इसके पीछे कई आध्यात्मिक कारण भी रहे हैं। सो उसमें मैं सबसे बड़ा नॉर्थ ईस्ट, या यू सेइंग समथिंग, द बिगेस्ट थिंग एज फार एज नॉर्थ ईस्ट इज I was just mentioning that only कि उसके पीछे कारण क्या रहा? Was there some connection with the divinity, some spirituality? Because since we ourselves on this path. Go ahead. I was in fact coming to. That's exactly what I was coming to. It is connected. To my observation as an outsider in these parts, from what I have observed, कि जो महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी रहे, उनका मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट की और विशेष तौर से स्पेशली आसाम के कल्चरल हेरिटेज में
he is the biggest contributor. In fact, मैं कहूँगा कि वो जो एक भक्ति मूवमेंट हुआ था इंडिया में 15-16 सेंचुरी में, तो he is one of the greatest saints of the bhakti movement. And it is unfortunate that the rest of the country in India, we don't know so much about him, and we don't even talk so much about him. और महापुरुष शंकर श्रीमंत शंकर देव जी जो थे, वो ही वॉज अ कंटेम्पररी टू गुरु नानक देव जी, और ये आपस में मिले भी थे, और इनकी विचारधाराएं भी बहुत मिलती जुलती थी। और उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा कि उन्होंने यहाँ पे क्षत्र करके एक ऐसे मठ, जैसे आदि शंकराचार्य ने भारत देश के 4 कोनों में मठ बनाए, ऐसे ही उन्होंने मठों की स्थापना की, और नामघरों की स्थापना की। नामघर ने एक ऐसा मंदिर कह सकते हैं जहाँ पे लोग मिलते हैं, और वैष्णव जो है उस संप्रदाय के लोग हैं जो भगवान राम के भजन गाते हैं, विष्णु के भजन गाते हैं, और मेरे को भी बहुत पसंद है। हो सकता है इसमें समय भी, पर आई विल शेयर 1 or 2 लाइन्स फ्रॉम अ भजन। तो शंकर देव जी का बहुत वो कंट्रीब्यूशन रहा समाज को संगठित करने का। एंड द ब्यूटीफुल पार्ट इज ही यूज्ड मेनी डिफरेंट वेज टू डू इट, through dance, through drama, through songs. He was a very, very multifaceted personality. So I think his contribution to society at large जो है वो उसको और सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है आज के दिन में। और मेरा इनफैक्ट my heart was that our first episode should be on Mahapurush Srimanta Shankar Dev ji. So यहाँ पे मैं एक और चीज मेरे एक्सपीरियंस से भी ऐड करना चाहूंगी। Since I am from UP, I have been born and brought up in UP, and now I am married in a Maharashtrian family, and when I am staying in Maharashtra, even I feel so that India is the land of saints. देव भूमि रही है पूरी। तो इवन जैसे महाराष्ट्र में भी स्मॉल किड्स they know about the saints of Maharashtra. So आप जैसा बोले कि हाँ, कि ये जो संत थे इनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको चाइल्डहुड से स्कूल टाइम से they should be told the stories of our saints. So for me, as a North Indian, as a person from UP, I lack this knowledge somehow. Maybe not fully, but partially. तो ऐसा तो है। So आगे बढ़ते हुए, I would just like to ask one thing. जैसे हमने बहुत बार ऐसा सुना है, फॉर एग्जाम्पल अपने कुछ टीचर्स से ही आर्ट ऑफ लिविंग में ऐसा सुना है कि there is little challenge in staying in Northeast. Things are not so easy, little difficult. तो वो challenges क्या हैं, और आप उसके बारे में कुछ बताएंगे क्या, so that हमारे को भी थोड़ी clarity हो उस पे। Okay. So I think you were talking about women in particular. Is that right? Can you just show me a thumb like that? Then I'll know. Yes, perfect. Right. So coming to the point, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि there is a unique word I want to share with everybody. वो word ये है बायदो. Now, what is the meaning of बायदो? बायदो is actually it has no exact translation into Hindi. हिंदी में उसका कोई exact अनुवाद करना बहुत कठिन होगा बायदो शब्द का। तो वो दीदी भी कह सकते हैं, मैडम भी कह सकते हैं। एक रिस्पेक्ट से हम किसी महिला को बुलाते हैं तो बायदो कह के बुलाते हैं। और इनफैक्ट इवन इन द स्कूल्स जो बच्चे हैं वो टीचर को बायदो बोलते हैं। एंड सो इट्स अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट बाय विच you call a lady a didi or somebody elder to you, a woman elder to you. So respectful way of addressing women is उसको बायदो बोला जाता है।
तो ये इससे कई 2-3 मेरे व्यक्तिगत जो है संबंध मेरी जानकारी के जो इंसिडेंट्स है आई वांट टू शेयर विद यू। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वांट टू शेयर दैट आप अगर किसी बस में घुसते हैं, अधिकतर मैंने नोटिस किया है, I mean the ones that I have traveled in wherever possible, though there have not been many instances, but तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि महिलाओं को सीट मिल जाती है, ऑटोमेटिकली मिल जाती है, उधर आपको रिजर्व सीट रहती है तो भी रिजर्व सीट लिखने की जरूरत नहीं है। दे आर गिवन दैट मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, दे ऑटोमेटिकली गेट अ प्लेस टू सिट। तो ये तो सबसे एक कॉमन जो इंस्टेंस है आपको देखने में मिलेगा, दैट्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। एंड नंबर 2 थिंग इज, मैं आपको 2 इंसिडेंट्स बताऊंगा। एक इंसिडेंट तो ये है कि उससे पहले लेट मी बिल्ड इट अप एक्चुअली। तो दूसरी बात ये है कि लाइक इन आर्ट ऑफ लिविंग आल्सो आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट इफ एन आर्ट ऑफ लिविंग मेल टीचर कॉल्स अप अ वॉलंटियर, एक मेल टीचर का फोन आता है तो वॉलंटियर जो रहता है वो मे बी इतना तत्पर होता होगा बट इतना ज्यादा नहीं होता। बट इफ अ लेडी टीचर कॉल्स, his response or her response, the volunteer's response is much more, oh Baido ka phone aaya hai, like if Baido calls, then like, oh, it's the most important call in the world, yeah। तो that is one aspect of it। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि मैं वो भी दोनों इंसिडेंट्स आर्ट ऑफ लिविंग से संबंधित ही आपसे शेयर करूंगा। अपने एक एपेक्स बॉडी मेंबर थे, उनकी आज से मेरे ख्याल से 20-25 साल पहले की बात है, उससे भी ज्यादा होगा शायद। तो दिस द पर्सन कंसर्न, मतलब फर्स्ट हैंड उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था। कहते कि उनको एक मिलिटेंट ग्रुप का, कोई उस टाइम की लीडिंग मिलिटेंट ग्रुप जो अपर असम में, पूरे असम में प्रेवलेंट थी, तो उनका रैंसम थ्रेट आया था कि हमको इतना पैसा पहुंचा दो और हम नहीं तो व्हाटएवर, ये ऐसा रैंसम थ्रेट जैसा होते हैं परहैप्स। तो इन्होंने जो भी उनसे निगोशिएट हुआ कि नहीं हम इतना नहीं दे पाएंगे और व्हाटएवर ये वो करके, सो अ फिगर वाज एग्रीड अपॉन कि ठीक है हम इतना पैसा दे सकते हैं। तो वो देने के लिए देन फाइनली अ प्लेस और व्हाटएवर वाज डिसाइडेड अपॉन, तो ये वो पैसा उनको मिलिटेंट ग्रुप को देने को जा रहे थे। घर की महिलाओं ने बोला हम भी साथ जाएंगी, तो दे आल्सो वेंट अलोंग टू गिव दिस रैंसम मनी। और जब ये लोग पहुंचे वहां पे पैसे देने के लिए, तो वो मिलिटेंट सब खड़े हो गए, बोले भाई दो आइए, कुर्सी दो भाई दो को। तो सो वो एक एक देयर इज अ देयर इज अ एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट उनके संस्कार में ही है। तो ये दिस नोट वर्दी in any case, when we are saying this, it obviously does not justify militancy, it doesn't justify any acts of violence done by any such group। Definitely, but it shows the values which are there, जो एक मेल में एक फीमेल के लिए है, those values, that respect is always there. Next Monday, all right? Okay. All right, thank you everybody. Jai Guru. Okay, thank you everybody. Next Monday again we'll be going live and hopefully with a better network. So we request you all to join in more numbers next week, next Monday, with some other new topic, some other interesting topic. Good night. Namaste.